Hello friends, welcome you all on my channel Maths की कक्षा. We had already completed 3 chapters basic mathematics, logarithm and compound angle before this video. And these all 3 chapters are basics for you because you had already familiar with this chapter in your earlier classes that are directly or indirectly in your syllabus. Because some of the students already studied basic properties of triangles and other basics which is used for mathematics and trigonometric ratios in their 10th class. So from now we are going to study all those chapters which are new for you. For previous video we had used slide method to make video short, but from now this all are new for you. All chapters are very beginning for you. For making the concept of this chapter very strong, we are going to make all videos on pen and paper so that you can gain concept easily and you can make notes with me. So friends, without wasting time, let's continue with the video. In this video we are going to study trigonometric equations and inequations chapter. First of all we are going to cover trigonometric equations, then after we will move towards trigonometric inequations. So before studying trigonometric equation, first of all we have to know the concept of trigonometric ratios. So put the heading trigonometric ratios. We have 6 trigonometric ratios. First is sine, second is cos, third is tan, fourth is cot, fifth is cosec, sixth is cot. So जैसा कि एल्जेब्रिक इक्वेशंस में क्या होता है कि एल्जेब्रिक टर्म्स का यूज़ करके एल्जेब्रिक इक्वेशन बनती है, उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बनाई जाती है. So what is trigonometric equation? An equation involving one or more than one trigonometric ratios of unknown angle is called a trigonometric equation. तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जैसा कि एग्जांपल से देखते हैं. ऐसा अगर लिखा है कुछ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 3, कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 9. अब मान लीजिए कुछ इस तरह का लिखा है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यहाँ पे साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और अननोन एंगल यहाँ पे थीटा है, और उन सब से मिलके बन गई ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. ये सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ किया गया है, कॉस थीटा एंड टेन थीटा. Here cos theta is trigonometric ratio, theta is unknown angle, and tan theta is trigonometric ratio and theta is unknown angle. और इन सब से मिलके बन गई ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. उसी तरह से ये इक्वेशन है जहाँ पे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ किया गया है. तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करके बनने वाली इक्वेशंस को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहा जाता है. अब कोई भी इक्वेशन अगर आप मैथमेटिक्स में बनाते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी इम्पोर्टेंट होता है, उसका सॉल्यूशन भी कैलकुलेट करना होता है. तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं. सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं. सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इसमें फर्स्ट टाइप है सॉल्यूशन में. सॉल्यूशन का फर्स्ट टाइप है प्रिंसिपल सॉल्यूशन. Second is general solution, and next is particular solution. You have to make notes with me so that why you can make revision of this after watching this video. सो देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है, अगर आपके सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन के नाम पे हम लोग को थीटा की वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो सके. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है थीटा की वो वैल्यू जो कि 0 से 2 पाई के बीच में हो. अगर 0 से 2 पाई के बीच में अगर थीटा की कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा. जनरल सॉल्यूशन का मतलब है कि आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कहीं तक भी जा कर के कितने भी सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर सकते हो. वैसे भी
all trigonometric ratios, trigonometric functions are many one in periodic, so that's why you have many chance to calculate more general solutions. So general solution में आप कितने भी सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर सकते हो. पर्टिकुलर सॉल्यूशन है थर्ड. पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन में या फिर किसी भी तरह से हिंट मिलेगा कि किस इंटरवल में आपको सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है. तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वैल्यूज़ ऑफ थीटा इन गिवन इंटरवल. तो ये होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो इस 3 तरह के सॉल्यूशन कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. अब कुछ ऐसी जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगी. उनकी जनरल सॉल्यूशंस को आप लोग रिमेंबर कर ले ताकि वो कहीं भी आए तो आपको यूज़फुल लगे. तो सबसे पहले देखते हैं कुछ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सबसे फर्स्ट है जो आपकी है वो है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0. अब ये भी एक जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है हैविंग वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. अब साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 कब हो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है. तो साइन थीटा 0 होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, मींस सबसे पहले 0 पे, देन आफ्टर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरह से अप टू इनफाइनाइट तक आप जाएंगे बिकॉज दिस इज आस्किंग फॉर जनरल सॉल्यूशन. सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू राइट हियर इट्स जनरल सॉल्यूशन 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, and now making it general it becomes n pi. Here n belongs to integer. तो इस तरह से sin थीटा 0 हो जाएगा इस तरह इन वैल्यूज़ पे. नेक्स्ट है cos थीटा इज इक्वल्स टू 0. तो cos थीटा 0 कब होता है? तो cos थीटा 0 होता है वर्टिकल लाइन पे, मीन्स एट पाई बाई 2, देन आफ्टर 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2. Means we are going to write here general solution pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2. इसको अगर जनरल कैलकुलेट कर लेते हो कुछ इस तरह से, मीन्स ऑड पाई बाई 2 वैल्यूज़ पे आएगा. और ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n + 1 इंटू पाई बाई 2. हियर n बिलोंग्स टू इंटीजर. ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा. और यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन साइन थीटा का n पाई हो गया. आप इनके नोट्स बना ले ताकि आपके लिए यूज़फुल रहे. नेक्स्ट टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0. टेन थीटा 0 कब होता है? टेन थीटा को 0 करने के लिए सबसे पहले टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. अगर साइन थीटा 0 हो जाएगा तो टेन थीटा ऑब्वियसली 0 के इक्वल हो जाएगा. तो साइन थीटा जब 0 के इक्वल होगा तब टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. और साइन थीटा 0 कब होता है जो कि हम लोग फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन में देख चुके हैं. ये देखिए ये जो जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये इतनी ज़्यादा जनरल है कि सी पार्ट में भी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 का यूज़ आ गया. तो अगर आपको ये रिमेंबर है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 कब आता है तो आप अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, अगर साइन थीटा 0 के इक्वल होगा तो टेन थीटा 0 हो जाएगा, मीन्स एट n पाई. तो जनरल सॉल्यूशन हो गया साइन टेन थीटा इज इक्वल टू 0 का n पाई. हियर n बिलोंग्स टू इंटीजर. नाउ जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा. साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, डी पार्ट हियर. अब साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल कब होता है? साइन अल्फ़ा मीन्स मान लीजिए आपको कोई एंगल दे दिया गया है. एक बार के लिए सपोज करते हैं एग्जांपल साइन अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पाई बाई 6 दे दी गई है तो RHS आपका बन जाएगा 1/2. तो इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 कब होगा. तो उसके लिए थीटा आपको कैलकुलेट करना होगा. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2. सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, फिर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है. दैट्स वाई सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसके लिए कोई भी वैल्यू नहीं आएगी थीटा की. फिर अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फिर अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट.
तो इस तरह से आपको जनरल कैलकुलेट करना होगा। तो अगर यहाँ पे 30 डिग्री पे वैल्यू आती है तो यहाँ वैल्यू 150 डिग्री पे आएगी। मींस पाई माइनस अल्फ़ा वैल्यू कैलकुलेट करने पर सेकंड सॉल्यूशन हम लोगों को मिलता है, और थर्ड सॉल्यूशन के लिए 2 पाई प्लस अल्फ़ा जाना होगा। मींस सबसे पहले टोटल 2 पाई कवर किया, देन आफ्टर मूविंग अल्फ़ा वी विल गेट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं इसके लिए जनरल सॉल्यूशन बन गया पाई माइनस अल्फ़ा 2 पाई प्लस अल्फ़ा। इसको जनरल लिखा जा सकता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा। तो थीटा के लिए ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा ताकि साइन थीटा साइन अल्फ़ा के इक्वल हो सके। नेक्स्ट उसके बाद में है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा। ई पार्ट कॉस थीटा को कॉस अल्फ़ा के इक्वल करना है, तो थीटा इज सिंपली 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे अल्फ़ा के लिए बाउंडेशन होती है अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अल्फ़ा को 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए। नेक्स्ट अगर टेन थीटा, नाउ फॉर टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा, द कंडीशन फॉर अल्फ़ा इज अल्फ़ा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, and the general solution for theta is equals to n pi plus alpha for making tan theta is equals to tan alpha. Now the next general equation is sin theta is equals to 1. अभी बहुत बेसिक है, sin theta is equals to 1। तो sin theta is equals to 1 कब होगा? sin theta हमेशा वर्टिकल लाइन पे 1 होता है। मीन्स कुछ इस तरह से π/2 3π/2 5π/2 7π/2। बट जब आप वर्टिकल लाइन में नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे साइन -1 चला जाएगा। तो सिर्फ आपको लेना है अपवर्ड पार्ट ऑफ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का सिर्फ ऊपर का पार्ट, मीन्स ये सभी रूट्स कैंसिल हो जाएंगे। जो बिलो ओरिजिन आएंगे वो सारे रूट्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ रहेगा π/2, देन 3π/2 गेट कैंसल्ड एंड 5π/2, 7π/2 गेट कैंसल्ड 9π/2। तो इसको जनरल आप लिख सकते हैं 4n + 1 इंटू π/2। तो इसके लिए थीटा का जनरल सॉल्यूशन हो गया 4n + 1 इंटू π/2। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया थीटा का। और यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। नेक्स्ट cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। cos थीटा को 0 के इक्वल करना है। तो cos थीटा 0 कब होता है? cos थीटा 0 होता है सिर्फ वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन पे cos थीटा 0 होता है। सो cos थीटा 0 हम लोग देख चुके हैं। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो cos थीटा 1 सिर्फ राइट साइड ऑफ ओरिजिन के राइट साइड पे होगा, बिकॉज यहाँ पे जब भी वो 1 बनेगा तो वो -1 बनेगा। तो ये सब वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ वैल्यूज़ आएंगी 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरह से। तो इसको जनरली लिख सकते हैं 2n पाई। दिस इज़ द जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड हियर n इज़ बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। तो आप इस तरह से 5-6 वैल्यूज़ के लिए आप लोग जब चेक करेंगे तब आप लोगों को अपने आप ही रियलाइज़ हो जाएगा कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये कुछ जनरल सॉल्यूशंस थे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, जो कि आप लोगों को रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी था। तो अब इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हियर क्वेश्चन इज फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x for which tan 3x minus tan 2x upon 1 plus tan
3x इंटू 10 2x इज इक्वल्स टू 1। देखिए ये क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज़ अगर ये क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टली अगर आपके एग्जामिनेशन में देखते तो 90% स्टूडेंट इसको जल्दबाजी में गलत कर देते। तो वो क्या जल्दबाजी होती है, क्या गलती होती है, वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे और पता करेंगे कि वो गलती कैसे रिमूव की जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ये जनरली ये फॉर्मूला लिखा है tan a माइनस tan b का, मीन्स tan a माइनस b का फॉर्मूला लिखा है ये कुछ, इसको लिख सकते हैं tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये जो लिखा है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है LHS में, इसको आप सिंपली लिख सकते हैं tan 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए कुछ इस तरह का लिखा है tan थीटा इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4, मीन्स tan थीटा को tan अल्फ़ा के इक्वल, तो जो कि हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि tan थीटा अगर tan अल्फ़ा के इक्वल हो तो उसको किस तरह से लिखते हैं, तो ये अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाय 4, बिकॉज ये बहुत इजी था, हम लोग देख चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4 होगा। तो यहाँ पे x की आप कुछ वैल्यूज़ डाल के देखिए, तो x की आप अगर वैल्यू आप सपोज़ कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डालिए n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए, तो n इज़ इक्वल्स टू 1 डालेंगे तो ये बन जाएगा 5 पाई बाय 4। तो 5 पाई बाय 4 वैल्यू आप अगर अपने क्वेश्चन में जो LHS में एक्सप्रेशन दिया है, उस एक्सप्रेशन में अगर x की जगह 5 पाई बाय 4 रखते हैं तो आप देखेंगे कि ये इस इक्वेशन को अनडिफाइंड बना रहा है, मीन्स द वैल्यूज़ ऑफ x मेकिंग साइन टू x अनडिफाइंड। जब tan 2x अनडिफाइंड, जब आप इस वैल्यू को यहाँ डालेंगे तो tan 2x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप तो इस क्वेश्चन के अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप लोगों की तो सॉल्यूशन निकल गए, बिकॉज आप थीटा का जनरल वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं n पाई प्लस पाई बाय 4, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेटिस्फाई करवा के डाल देते हैं, बट इसमें एक भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होगा, इसके लिए नो सॉल्यूशन, बिकॉज इनमें से थीटा की आप कोई भी वैल्यू डालें tan 2x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जिस क्वेश्चन की आपको इजीली लग रहा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, उस क्वेश्चन के अनडिफाइंड मीन्स एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इसको कैसे पता किया जाए कि एग्ज़ाम में कैसे पता किया जाए कि ये सही हो, टाइम बचा के कैसे किया जाए, उसके लिए है कि आपके पास जो भी थीटा कैलकुलेट हो, उस थीटा को एक बार आप अपने क्वेश्चन के जो आपके पास एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को एक बार पुट करके देख ले कि वो दरअसल वो थीटा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है इक्वेशन को सेटिस्फाई तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। सो आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ इनके नोट्स बनाएं ताकि नोट्स से आप लोग इनको क्लियर समझ सकते हैं। आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवीजन करने में इजी होगा, आपको लगेगा खुद के नोट्स ऐसा लगेगा कि खुद के नोट्स पढ़ने में बहुत इजी लगते हैं और इच्छा होती है खुद के नोट्स पढ़ने के लिए। सो प्लीज़ मेक योर नोट्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। Thanks for watching this video. If you get any benefit from this video, please like this video, share it with your friends, so that's why they also get any benefit from this video. And if you want to see my more videos, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And don't forget to comment, because your comments motivates me and help me to improve myself. So thank you so much guys for watching this.